اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف پولیس، ایف سی اور رینجرز کا مشترکہ گرینڈ آپریشن۔ خیبر پلازا سے کلثوم اسپتال کے درمیان زبردست شیلنگ۔ تحریک انصاف کے مرکزی کنٹینر کو آگ لگ گئی۔ پی ٹی آئی کے 450 کے قریب کارکن گرفتار۔ بلو ایریا کو مظاہرین سے خالی کرا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور اور بشرا بی بی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ پنجاب اور کے پی کے کو ملانے والا اٹک پل ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ راولپنڈی پولیس کا رات گئے جلاؤ گھراؤ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 400 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پکڑے گئے افراد سے اسلحہ، ایمونیشن، کمیونیکیشن آلات، مہلے گولیلیں، بال بیئرنگ برآمد۔ پولیس ذرائع کے مطابق پنجاب میں اب تک 800 کے قریب شرپسند عناصر کو گرفتار کیا جا چکا۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ نہتے پرامن شہریوں کے قتل اور آپریشن کی مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے مطالبہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کارکنوں کے قتل کا از خود نوٹس دیں۔ وزیر داخلہ، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بشرا بی بی اور الیمین گنڈاپور ابھی تک فرار ہیں۔ آپریشن کے بعد ڈی چوک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پہلے روز سے کہہ رہا تھا مذاکرات نہیں ہو رہے۔ آج سے انٹرنیٹ سروس، سڑکیں، موٹر اور میٹرو بس سروس کھول دی جائیں گی۔ اسکول کل سے کھل جائیں گے۔ پی ٹی آئی سے کہتا ہوں کہ بس کر دیں، اب تک ایسا کریں گے۔ پکڑے گئے افغانوں سے متعلق فیصلہ کر لیا، 2-3 روز میں سامنے لائیں گے۔ قبل ازین دن میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سارے جانی اور مالی نقصان کی ذمہ دار ایک عورت۔ پی ٹی آئی والوں سے ہر طرح بات چیت کی کوئی کوشش کی گئی، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، صرف مطالبات ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف والے جوتے اور کپڑے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ڈی چوک میں میڈیا سے گفتگو میں عطا نے کہا کہ یہ فائنل کال نہیں تھی، مس کال تھی۔ الیمین گنڈاپور کا نام الیمین بھگوڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے شواہد مٹانے کے لیے فرار ہوتے ہوئے کنٹینر خود جلایا۔ کنٹینر میں موجود دستاویزات کا فورینزک کرائیں گے، جبکہ ہمیں درست وقت کا انتظار تھا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اطلاعات ہیں کہ مونال کی طرف سے فرار ہوئے ہیں، کہیں پانی ملے تو شرم سے ڈوب مریں۔ انہوں نے کہا میڈیا دفاتر پر حملوں کا افسوس ہے۔ وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا سمیت دیگر وزراء کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی کے احتجاج اور حکومت کی حکمت عملی پر مشاورت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس میں احتجاج کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور سیکریٹری داخلہ بریفنگ دیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہم پرامن فضا کو ترس گئے اور یہ جو کر رہے ہیں روز نیا تماشا پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیمین اس بار کتنے ضلع گھوم کر آئیں گے وہ آج کے تماشے میں پتہ چل جائے گا۔ الیمین اس بار بشرا بی بی کو بھی اپنے ساتھ گھمائیں گے۔ صوبے کے عوام فیصلہ کریں، اپنے صوبے، اپنے حقوق، اپنے وسائل کا بے جا اور بے درغ استعمال اور فضول استعمال اور اپنے مستقبل کی تباہی کو کب تک برداشت کرنا ہے، یہ فیصلہ صرف آپ کا ہے۔ آپ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اندازہ کریں اور تحریک انتشار کا محاسبہ کریں۔ ایک حد ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سنگجانی میں دھرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک ہی جائیں گی۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں انہوں نے برملا کہا کہ نہیں مانوں گی، ہم پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں، اسلحہ لے کر نہیں آئے۔ ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو تو مذاکرات سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات میں محسن نقوی سمیت دیگر شخصیات شامل تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کا بیان درست نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے احتجاج کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، رابطوں کے بارے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تفصیل بتاؤں۔ ہمارے خلاف تشدد ہوا ہے، ہمیں کوئی کھلا راستہ نہیں دیا گیا۔ حکومت کی غیر منطقی بیان بازی اور اقدامات نے مسئلہ بگاڑ دیا۔ ہمارے خلاف تشدد کے الزامات کی تحقیقات کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ حکومت کی کوشش تھی کہ مظاہرین ڈی چوک تک نہ پہنچے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مئی 2022 میں بھی ہمیں اسی صورتحال سے گزرنا پڑا تھا۔
3 मकामात से मुजाहिरीन को रोका जा सकता था। इनकी कोशिश थी कि डी चौक पहुंचे, वो पहुंच गए। ये लाशें चाहते हैं। हुकूमत की गलती हुई तो इसका फ़ायदा दूसरी तरफ को होगा। हुकूमत और कानून नाफिज करने वालों को अपना काम करना चाहिए। डी चौक पर बैठना आसान काम नहीं, फ़र्क आएगा। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। 10-12 हज़ार लोगों में कमी या इजाफा होना चाहिए, इससे इनकलाब नहीं आएगा। बानी पीटीआई मसले के हल की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत ही मसले का हल है। कल रात तहरीक इंसाफ वाले बानी पीटीआई से मिलकर आए। बानी पीटीआई कल रात की बात पर मुत्तफिक होते तो कोई और बात ना होती। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, पुलिस और रेंजर्स एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। रेंजर्स के शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक रेंजर्स एहलकार इस्लामाबाद में मुजाहरे के दौरान शहीद हुए। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ और आला फौजी और सिविल अफसरान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा में नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम और सिपाही शाहनवाज शामिल। शहदा की तदफीन पूरे एजाज के साथ आबाई इलाकों में की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मजीद किसी खून खराबे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मज़म्मत। रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए पूरी कौम दुआ गो। हमलों में पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, तकरीबन 119 जख्मी हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेज़ात का तबादला। तकरीब में वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की भी शिरकत। दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मुलाकात सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बेलारूस के सदर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर और इनके वफ़द के एजाज़ में आशाइया में बेलारूसी वफ़द के अरकान और पाकिस्तानी काबीना के अरकान की शिरकत। बेलारूस के सदर और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। तिजारत, मईशत और सिफारतकारी के शोबों में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। इसहाक डार ने कहा कि ये मुलाकात दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के एक नए रोशन दौर की नवीद, दोनों अक़वाम के लिए मुश्तरका तरक्की के दरवाजे खोलेगी। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात तारड़ समेत बेलारूस के आला हुकाम भी शरीक थे। आईनी बेंच में जमात इस्लामी के पानामा स्कैंडल पर नैब से रुजू करने की हामी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पानामा स्कैंडल पर दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, पानामा में मखसूस केस में GIT बनाई गई, इल्म नहीं पानामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। नैब का इख्तियार तरामीम के बाद कम हो गया। नैब नई तरामीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। वकील जमात इस्लामी ने कहा कि यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब को इस सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं दी गई। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। जमात इस्लामी की दरखास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन है। नैब से दाद रसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि किस केस में क्या हुआ अदालत का कंसर्न नहीं। आईनी बेंच का स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। आईनी बेंच के सरबराह करीम खान आगा को खत के जरिए आगाह कर दिया। जस्टिस उमर सियाल ने खत में लिखा, आईनी बेंच के लिए नामजद होना इज्जत की बात है। जुडिशल कमीशन में इंतजामिया की अक्सरियत है जिससे मुदाखलत का तासुर हो सकता है। 2 माह के लिए बनाए गए आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। हाईकोर्ट के दीगर जजेस इस बेंच का हिस्सा बनने के अहल हैं।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। लिखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है कि इसमें तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर अमूमन गवाह बनाया जाता है। आमिराना दौर में जजिस को याद रखना चाहिए कि इनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। ओहदे को खोना छोटी सी कुर्बानी है, जबकि मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। शरपसंद दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं, जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनसे आहनी हाथों से निपटेंगे। बानी पीचाई को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। कारकुन वादा करें मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन से कबल बुशरा बीबी का कारकुनों से खिताब। कहा, कोई और लीडर होता तो डील कर लेता। मुसलमान को नहीं मारता। हम पर शेलिंग क्यों की जा रही है? हम पुरअमन हैं, हम आप पर शेलिंग क्यों करेंगे? क्या आपको नहीं पता कि बानी पीचाई सिर्फ हक और सच की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं? वो हक के लिए खड़ा है। आखिरी औरत होंगी जो बानी पीचाई को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। जितना भी प्रेशर आए, कोई कुछ भी कहे, हमने तब तक नहीं रुकना जब तक बानी पीचाई खुदा कर ना कहें। बुशरा बीबी ने कारकुनों से बानी की रिहाई तक डी चौक ना छोड़ने का वादा भी लिया। सिक्योरिटी खतरात। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 28 नवंबर तक तौसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरना और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। तौसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का निफाज के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वान शहरों में इंटरनेट सर्विस और मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मोबाइल डाटा पर इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। वाईफाई पर भी रफ्तार सुस्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज तीसरे रोज़ भी बंद रखने का ऐलान। रास्तों की बंदिश, ग़िज़ाई अजनास की दस्तियाबी में 50% किल्लत। जुड़वां शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का ज़िला इंतज़ामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा। रास्ते ना खोले गए तो पेट्रोल पंप मुकम्मल बंद कर देंगे। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अल्टीमेटम। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खदशे के बायस वज़ारत पेट्रोलियम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला। लिखा, हुकूमत अटक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फराहमी के फौरी इक़दाम करे। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिले और खारजी रास्ते दोबारा सील। रिंग रोड, दाता दरबार, शालामार और रावी रोड पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। शाहराहों और मोटरवेज की बंदिश के बाद पेट्रोल सप्लाई मुतासिर, पंप्स बंद होने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल की सबसे बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स में 3,505 पॉइंट्स की कमी, 95,000 से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स 94,574 पर बंद। सऊदी काबीना ने नए माली साल 2025 के लिए बजट की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक बजट की मंजूरी के लिए खुसूसी इजलास की सदारत सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने की। नए बजट में आमदनी का तखमीना 1.18 ट्रिलियन रियाल, अखराजात 1.28 ट्रिलियन रियाल होंगे। सऊदी काबीना ने माली साल 2025 के लिए बजट खसारा 101 अरब रियाल लगाया। सऊदी वलीअहद ने माशी इस्तेहकाम, पब्लिक, नेशनल डेवलपमेंट फंड और दीगर तरक्याती फंड्स के अहम किरदार पर जोर दिया। सऊदी वलीअहद ने हिदायत की कि मुमलिकत के विजन 2030 के लिए तरक्याती और समाजी मंसूबे। भारत के पाकिस्तान आकर खेलने के इनकार के बाद आईसीसी ने 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुला ली। मेजबान पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने से इनकार कर चुका। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 फरवरी से शुरू होना है।